Hello everyone. I wish each one of you a very lovely, beautiful, successive, pleasant morning. You don't make progress by standing on the sidelines, whimpering and complaining. You make progress by implementing ideas. One more time, you don't make progress by standing on the sidelines, whimpering and complaining. You make progress by implementing ideas. The great quotation given by Shirley Chisholm, the first black woman elected to the United States Congress. So, with this beautiful saying, I, Professor Shyam K. Mishra, your moderator for today's session, would like to welcome you all in the induction program of our 22nd batch of the PGDM. So, before we get started, I would like to brief you about the flow of the session. The session will be of an hour and 15 minutes. As you all already know, where the first 60 minutes will be the session by your guest, and the rest 15 minutes will be for questions and answers. You can type your questions in the chat box and that will be addressed at the end of the session. Now, I would like to invite and introduce our esteemed guest, Mr. Mauli Chandra Shahi, the founder and director of Force Intellect Private Limited. Let me tell you something about Mr. Chandra. Mr. Chandra is passionate about helping manufacturing SMEs grow by implementing digitalization and automation with ERP. He is committed to providing best ERP software, ERP products, and e-procurement solution for manufacturing industry SMEs to make a significant contribution and partner in their growth. Mr. Chandra is instrumental in designing and developing a Spectrum ERP, a robust and affordable ERP for manufacturing SMEs. He has helped more than 100 SMEs in digitalizing their business using ERP across manufacturing industry verticals such as steel, fabrication, engineering, electrical, mining, chemical transmission line, tower industries. Mr. Chandra has founded the Force Intellect Private Limited in the year 2009. He is also a co-founder of another company named Collab Solution Private Limited. He is a persona and we are glad to welcome him as our esteemed guest today. So over to you, Mr. Chandra. Thank you, Professor Shyam. Thank you for this introduction. And it is my pleasure to interact with such students. And I thought this is an opportunity for me also to look back and share my thoughts. If I would have been in college, or if I would have been again got a chance to be again in college, so how I should make use of these 2 years of time. So that is the thing that I would like to share with you all today. And in today's presentation, so I will discuss a little bit about ERP. So what is ERP as a management student? How you will interact with the ERP? ERP के साथ में आपका कैसे interaction होगा in different capacities, and how you can make yourself ready for the future success. So future framework. So with this thought, so I will start my presentation. I will try to keep my presentation as simple as possible and as jargon free as possible. So हम लोग यदि ERP को समझे कि what is ERP, so simple term में समझ सकते हैं कि ERP is a software application or suite of software applications which generally different businesses use. जो different business हैं वो उनके जो different business processes होते हैं उनको integrate करने के लिए, automate करने के लिए, connect करने के लिए they use the ERP applications. Okay, and आप सबके लिए इसलिए ज़्यादा important हो जाता है because you all are the students of the business administration. So business administration में you will interact with the various business activities. So आप इसमें ERP के साथ में आपका हमेशा interaction होने ही वाला है with different capacity. Either you will consume the ERP as a user, like as an executive in some company you will use ERP, or you may join some like for example any ERP implementation company also. So वहाँ पे आप as a ERP practitioners आप वहाँ पे ERP implementation में भी आप इसमें काम कर सकते हैं. तो either way I feel आपके जो career में you are going to use ERP in any way. Right. So ERP is basically this comes under business management applications. So business management के जो standard applications आजकल जो हो गए उसमें ERP is one of them. We talk about what are the modules. So हम किसी भी ERP की बात करते हैं. So there are 5 standard modules.
So one is material management, second is production planning, third is finance, sales distribution and payroll. These are the standard modules. हम इनको core modules भी बोलते हैं कि like these are the core modules of any ERP applications. And with the time, अब इन core modules के अलावा बहुत सारे peripheral modules भी जो है इसके साथ में develop होते जा रहे हैं. Like for example, plant maintenance, which is also called enterprise asset management. Apart from that, like sales distribution काफी ज्यादा आजकल जो है अलग से not the sales distribution, business intelligence हो गया, CRM हो गया, ये सब ERP के टॉप में जो पेरिफेरल मॉड्यूल्स हैं उनके साथ में यहाँ पे इंटीग्रेट होके इसमें आज काम करते हैं. आजकल आज की डेट में ई कॉमर्स भी जो है वो ERP के साथ में इंटीग्रेट हो रहा है. सो बेसिकली ERP में कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं एंड कुछ पेरिफेरल मॉड्यूल्स होते हैं. कोर मॉड्यूल्स आर द वाइटल मॉड्यूल्स. And why companies implement ERP? So what are the benefits that usually company gets from implementing the ERP? The first and foremost benefit is integrated operations. Like nowadays everything is connected. पूरा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है. हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में सिनर्जी के साथ में सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहा है. तो फर्स्ट एंड foremost requirement is the integrating the operations. After that, second point comes is the business discipline. Like for example, every company would like to implement certain kind of rules, certain kind of discipline in their organization. Like for example, परचेस का रिक्वायरमेंट कैसे रेज होना चाहिए, कस्टमर्स को कितनी क्रेडिट देना चाहिए, कितने समय के बाद में डनिंग होना चाहिए, एंड सो ऑन. पेमेंट्स नहीं आए, रिमाइंडर्स कैसे भेजना है, एंड डिफरेंट सिनेरियोज. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सिनेरियोज. कितनी लीव्स अप्लाई कोई पर्सन कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, सो ऑन. सो ऑल दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द ERP सॉल्यूशन, बिजनेस डिसिप्लिन आल्सो. सिमिलरली नाउअडेज जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिग और small, they are having a multi-location connectivities. Like everyone is having one office in, for example, in Pune, manufacturing facility, maybe in somewhere else in Palghar or somewhere else. So to connect different people within the organizations, people are using ERP software also. Similarly, operation excellence also. So ERP, as I said earlier, ERP is a business application. So whenever we talk about the business application, तो ये केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं है. It also brings a standard way of working with it. Like for example, हमने सुना होगा कि lean manufacturing. So ERP के through people implement lean manufacturing principles. Like for example, there are total quality management principles. So many principles are there. So supply chain के principles हैं. ये सारे के सारी companies जो हैं वो ERP के through roll out करती हैं. So they also try to gain the operational excellence through their ERP also. And finally, without analysis, without insight, you cannot implement your practices. So again, whatever they roll out, whatever principles they roll out, so they capture data through ERP, उसको gather करते हैं. Gather करने के बाद में they analyze it and they take further actions. And finally, companies को ये भी पता चलता है कि what is their manufacturing cost क्या आ रही है, distribution cost क्या आ रही है, and उसमें कैसे improvement करना है. ये सारी जो benefits है, companies try to gain all these benefits through ERP software. So you can see there are various benefits. बहुत सारे इसमें काफी बेनिफिट्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ERP इज गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलरिटीज, एंड नाउअडेज इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर द बिजनेस के लिए. जैसे जो डिफरेंट टूल्स की जरूरत होती है, वैसे नाउअडेज ERP हैज बिकम एसेंशियल आल्सो. एंड पेंडेमिक के बाद में तो और जो SMEs थे जिन्होंने इसमें जो पीछे थे, उनको भी रियलाइज हुआ कि नाउ इट इज वेरी मच एसेंशियल टू कनेक्ट देयर बिजनेस, टू ग्रो देयर बिजनेस, टू एनालाइज देयर बिजनेस. So these are the benefits, and we will talk little bit about the history of ERP also. So ERP का हिस्ट्री काफी लॉन्ग है. इट्स नॉट अ न्यू फील्ड. इट स्टार्टेड समवेयर इन 60s. तो 60s में बेसिक MRP सिस्टम्स हैं, वो वहां से स्टार्ट हुआ. बेसिक MRP मींस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको आज हम लोग इन्वेंट्री बोल सकते हैं. थोड़ा सा इसका जो इन्वेंट्री का एक पार्ट है, वहां से स्टार्ट हुआ. सो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको इन्वेंट्री की प्लानिंग करनी होती थी कि कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कब क्या प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कब कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. तो वहां से 60s में MRP चालू हुआ. जो वेरी लार्ज कॉर्पोरेशंस थे, उन्होंने स्टार्ट करना चालू किया. 70s में MRP काफी पॉपुलर हुआ, एंड साथ में जो SAP है, SAP कंपनी जो फर्स्ट, SAP इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ERP को एज ए प्रोडक्ट जो है डेवलप किया. सो 70s में SAP भी स्टार्ट हुई थी. तो यू कैन ऑल्सो से कि फर्स्ट वेंडर जो है ERP का 70s में यहाँ पे आया. इसके बाद में अर्ली 80s में MRP2 आया. MRP2 स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. सो अब क्या हुआ कि जो MRP था, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग था, उनके साथ में प्रोडक्शन और कुछ डिपार्टमेंट को और जोड़ दिया गया, और उसके बाद में फिर MRP एक एप्लीकेशन आ गया. फिर उसके बाद में 90s में जब हम आए तो कुछ और डिपार्टमेंट जुड़ गए. लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस जुड़ गया, सेल्स जुड़ गया. ये सब जुड़ के धीरे से फिर क्या हो गया, ERP आ गया. और यहाँ पे ERP थोड़ा और पॉपुलर होना चालू हुआ, क्योंकि बिकॉज 90s में कंप्यूटर्स काफी पॉपुलर हो गए थे, डेस्कटॉप काफी पॉपुलर हो गए थे, कंप्यूटर का पेनिट्रेशन काफी बढ़ गया था. तो उसके बाद में 90s से ERP
की पॉपुलैरिटीज, ईआरपी सिस्टम भी आया, उनकी पॉपुलैरिटीज भी होने लगी। इन 2000 स्पेशली इन यूएस साइड ई कॉमर्स का काफी बूम आया, तो ईआरपी के साथ में इंटरनेट भी जुड़ गया। पहले क्या होता था, ईआरपी मींस विद इन कंपनी के लैन के अंदर होता था, अब ईआरपी के साथ में इंटरनेट जुड़ गया, तो अगेन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। फॉर एग्जांपल ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशंस आ गए, जहां पे जो कंपनीज हैं वो जो प्रोक्योरमेंट कर रही हैं वो डिफरेंट वेंडर्स के साथ में कनेक्ट होने लगी। वेंडर भी अब जो ईआरपी के साथ जुड़ने लगे, इसको इसलिए ईआरपी 2.0 भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ईआरपी 2.0 आ गया। सिमिलरली ई कॉमर्स आ गया, तो ई कॉमर्स के इंटीग्रेशन होने लगे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सामने जो साइट्स होती हैं उनके पीछे भी ईआरपी होता है। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है ये आने लगे, ईआरपी की पॉपुलैरिटीज और बढ़ गई। एंड फाइनली अब इस समय में हम बोलें कि 2020 में अगेन बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मोबिलिटीज आ गई, तो ईआरपी के साथ में मोबिलिटीज भी जुड़ गए, मोबाइल एप्लीकेशंस साथ में अटैच होने लगे। इसके अलावा बहुत बड़ा एक चेंज आया है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट को मॉनिटर करना है और उसमें एसेट मैनेजमेंट मॉडल चल रहा है। तो एक पावर प्लांट के अंदर में क्या टेम्परेचर है, अभी क्या प्रेशर है, बॉयलर में क्या प्रेशर है, ये सारा कुछ रियल टाइम पूरा मॉनिटर वहां पे होने लगा है। ईआरपी से पूरा मॉनिटर होता है कि कितना पावर जनरेशन आउटपुट आया, वो पावर जनरेशन आउटपुट अच्छा है तो क्या सर्कमस्टांसेस थी, पावर जनरेशन यदि ड्रॉप हो गया तो क्या सर्कमस्टांसेस थी। ऑल दिस कैन बी एनालाइज्ड थ्रू आईओटी। तो आईओटी, ब्लॉकचेन, ये सब का भी काफी ज्यादा यूज जो है धीरे धीरे अब इसमें बढ़ रहा है। सो दैट इज द फ्यूचर फॉर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द ईआरपी। सो ईआरपी काफी समय से है, अभी काफी पॉपुलर हो गया है, एंड आई पर्सनली फील ये काफी समय तक और भी काफी समय तक ऐसे पॉपुलर रहने वाला है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट साइज ऑफ द ईआरपी, so around 2 years back 35.8 billion का ये allied market research का डेटा है। so around $35 billion का 2 years पहले जो था इसका मार्केट साइज था, एंड ये नेक्स्ट 4-5 years में बढ़ के ये 78 to 80 billion डॉलर जो है फॉर श्योर ये होने वाला है। सो अगेन काफी ज्यादा एवरी ईयर्स 10% की रेट से ये मार्केट जो है ये इंक्रीज उसमें होना चाहिए। एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द ईआरपी, एंड इससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स वगैरह और भी काफी चीजें इसमें रहेगी। सो डेफिनेटली there is a very huge market for the ERP within India and outside India also. So if I talk about the top 5 products, so definitely SAP is one of them. SAP के 2 प्रोडक्ट हैं, one is business one for the small businesses and SAP का S/4HANA है। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, काफी पॉपुलर है मार्केट में फॉर इन डिफरेंट सेगमेंट्स। Similarly, SAP के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है Oracle, has become very strong competitor for the SAP. तो Oracle का भी enterprise ERP जो प्रोडक्ट है, again it's gaining popularity. In fact, it has become popular. Similarly, Sage and Infor, ये भी मार्केट में टॉप 5 प्लेयर्स में ये अभी जो आ रहे हैं। These are the players in the organized sectors. And if I talk about the career in ERP में क्या पॉसिबल करियर हो सकते हैं? So ERP में काफी वास्ट वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं एंड डिफरेंट सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस एनालिस्ट आपने वर्ड सुना होगा। सो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो अपने आप में एक प्रोफाइल है वेयर यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, यू सजेस्ट देम सॉल्यूशंस की क्या उसमें होना चाहिए, यू गेदर देयर रिक्वायरमेंट एंड यू इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन। सो अपने आप में बिजनेस एनालिस्ट का जो एक प्रोफाइल है वो काफी अच्छा प्रोफाइल है, इट विल ऑलवेज बी देयर। बिजनेस एनालिस्ट के साथ में ही फंक्शनल कंसल्टेंट जो प्रोफाइल आते हैं वो भी हैं। तो हमने देखा कि ईआरपी में देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यदि प्रोडक्शन, सेल्स, एमएम ले लिया तो सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस का कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शनल कंसल्टेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे फाइनेंस में, कोई हो सकते हैं कि लेट्स से इन मटेरियल मैनेजमेंट में हो, तो ये उनके लिए भी काफी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स होता है। सिमिलरली वैसे ही जब आप करियर में ग्रो करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक रोल होता है, वो काफी बड़ा रोल होता है। ईआरपी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस साइड। सो इसमें बिकॉज इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट बिजनेस एंड इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन इन योर कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशंस। सो काफी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी होती हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो वो भी एक करियर में एक ऑप्शन होता है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि यू मस्ट बी कि आपने सुना ही होगा कि क्लाउड में ऑप्शंस आ गए हैं। Amazon पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, AWS पे डिप्लॉय कर सकते हैं, गूगल के भी क्लाउड है एंड माइक्रोसॉफ्ट के अपना Azure है। ऑन प्रीमाइसेस इंप्लीमेंटेशंस होते हैं, लोग अपने प्राइवेट सर्वर्स रखते हैं। सो देयर आर सो मेनी ways of implementing an ERP or so many ways of adopting any infrastructure.
सो नाउअडेज एक अलग से स्पेशलाइज जॉब हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंसल्टेंट होते हैं कि लाइक वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है। एप्लीकेशंस काफी स्केल अप होते हैं, यूजर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, सो मेनी डायनामिक एनवायरमेंट्स इज देयर। सो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे टोटली अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी काफी बड़ा मार्केट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगेन स्पेशली जो इंजीनियरिंग साइड से हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ईआरपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। विद इन ईआरपी अगेन देयर आर मेनी, विद इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगेन देयर आर मेनी सबसेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो डेटाबेस साइड पे काम करते हैं, सम आर लाइक यूआई यूएक्स पे काम करते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलपर्स जो हैं वो उसके ऊपर में काम करते हैं। कुछ इसमें अगेन जैसे हमने देखा कि एनालिटिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, तो बीआई जो है उसके ऊपर में अलग से स्पेशलाइज आता है। सो विद इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो देयर आर मेनी सब कैटेगरीज। सिमिलरली सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऐसा सिंपल बेसिक सपोर्ट नहीं होता है। ईआरपी लगने के बाद में कोई भी जो कंपनीज ईआरपी यूज करती हैं तो वो काफी सालों तक 7 ईयर 8 ईयर्स काफी समय तक ईआरपी कंटिन्यूस चलता है। तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के बाद ईआरपी मेंटेनेंस फेज में जाता है। सो ईआरपी को मेंटेन करना, उसमें एनहांसमेंट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब, टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज। सो काफी एक्सपर्टीज का जॉब है, भी काफी lucrative career opportunities हैं। And similarly sales and marketing, so this sales is you should say it's a B2B sale, and B2B sale की अपनी complexities होती हैं, sales cycle लंबा होता है, बहुत सारे decision makers होते हैं। हम नॉर्मल किसी सेल में जाते हैं, लेट्स से कोई रिटेल में जाते हैं, तो रिटेल में यूजुअली 1 या 2% जो होते हैं डिसीजन मेकर्स होते हैं, बट B2B सेल्स में देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिसीजन मेकर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सेल एन ERP solutions to any B2B company, so आपको बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस के आपको चैंपियन होना पड़ता है, आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि लाइक हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प दैट कंपनी इन अचीविंग देयर रिजल्ट्स, वो अपने रिजल्ट्स कैसे अचीव करेंगे, जो चेंजेस वो सोच रहे हैं वो चेंजेस उनको कैसे मिलेगा। सो इसमें भी जो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो जॉब है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू विल लर्न लाइक फॉर एग्जांपल कि B2B sales, one of the complex sale I have seen, so कैसे उस पे कैसे complexities में how you work with different stakeholders and then उनको कैसे आप change promise करते हैं, उसको कैसे deliver करते हैं। तो नॉर्मल आपने जो सेल्स मार्केटिंग में जो आपने स्टडी किया है वो तो एप्लीकेशंस अप्लाई होता ही होता है, प्लस नॉलेज भी काफी कुछ इसमें आता है। सो इसमें भी जो स्पेशलाइज सेल्स मार्केटिंग में भी होते हैं उनके लिए भी काफी करियर अपॉर्चुनिटीज है। सो आई वुड से देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सेक्टर, हर सेक्टर यहाँ पे लुक्रेटिव है। सो देयर आर 6-7 डिफरेंट सेगमेंट्स, देयर कैन बी मोर आल्सो, बट these were the broad segments that I could thought of. Now we move to so now my next topic is like how you can prepare yourself for to become successful professionals. If I talk about ERP or any other field, so मेरे field में एक advantage ये रहा है कि like I got opportunity to interact with so many people, like different companies में different जो senior managers से, different manufacturing companies, different IT company, my own company, people in my own company. So I realized कि like to become a successful professional, so there are certain traits which can be applied either people who are working in ERP field or who are working in any other field. So I thought I combined couple of things. I thought कि if I would have been in college, तो मैं वापस मुझे समय मिलता तो मैं क्या चीजें होता जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करता. So I have compiled all those things and I will share all those things with you. So let's ready for the success. Yeah. So I will start with a story. I'm sure आप यहाँ पे 2 जो यंगस्टर्स हैं इनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. So one is Sachin Tendulkar and another one is Vinod Kambli. And इनकी स्टोरी शुरू हुई थी मुंबई से शुरू हुई थी. दोनों ने ही सेम कोच रमाकांत आचरेकर उनके अंडर में ट्रेनिंग ली थी. एंड दोनों ने ही मुंबई सर्कल में काफी रन स्कोर किए थे. काफी समय तक इन्होंने जो रन स्कोर किए थे मुंबई सर्कल में जो स्कूल में, वो एक रिकॉर्ड था, अपने आप में रिकॉर्ड था. आई थिंक 600+ रन का पार्टनरशिप किया था इन्होंने और काफी इन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए थे. दोनों ही इंटरनेशनल प्लेयर्स रहे हैं और अपने अपने फील्ड में इन्होंने काफी नाम कमाया है इसमें. सो थोड़ा सा देखते हैं कि लाइक सचिन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कैसे उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और क्या हुआ उस समय. सो आई विल show you one small video. He's the highest run scorer at the topmost level in the game. Everything he did with bat in hand was proof of perfection. He was 5 feet 5 inches tall and he managed to earn the title of God of Cricket. He was born on the 24th of April 1973 in Mumbai.
and his dad was a poet and a very renowned novelist. His dad named him Sachin after his favorite Bollywood music director Sachin Dev Burman. Tendulkar was very passionate about tennis before he took to cricket. He lived his life with his relatives to train after school hours. His coach was the famous Ramakant Achrekar, who also coached Vinod Kambli. He wanted to be a fast bowler but ended up being one of the greatest batting legends the game had ever seen. You also bowl in your school matches, huh? Yeah. What type of bowling do you do? Medium pacing. He made his debut in 1989 against Pakistan, and in his third international game at just the age of 16, he got hit by a rocketing bouncer from Waqar Yunus, who used to bowl at 90 miles an hour back in the day. In a few seconds, he was covered in blood. And when he was asked to leave the field to rest, his response to that hit was "Main khelega," which meant "I will play." He saved that test match for India by scoring a brilliant half century. And that's how he entered the international era. So अभी हमने देखा कि सचिन का जो डेब्यू था वो कैसा था. हमने देखा कि इन द थर्ड इंटरनेशनल टेस्ट जो अभी उन्होंने डेब्यू किया ही था एट द एज ऑफ द 16, और जैसे ही उन्होंने डेब्यू किया स्टार्ट में अभी वो प्ले कर ही रहे हैं, उतने में वकार यूनिस का एक बाउंसर जो है जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का था, डायरेक्ट उनको सीधे स्ट्रक किया एंड वो पूरा ब्लड में पूरा सोक हो गए थे इसमें. और थोड़ा सा यदि मैं स्टोरी को एलोबरेट करूं तो उनके जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू जो खेल रहे थे, तो सबने उनको एडवाइस किया कि लाइक अभी आप रिटायर हो जाओ और थोड़ा 1-2 घंटे के बाद जब पेसर्स चले जाएंगे तब उसके बाद में फिर आप वापस आ जाना, तब आप बैटिंग करना. लेकिन सचिन का वहां पे रिप्लाई था कि मैं खेलेगा. एंड सचिन उसके बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया, जो प्ले स्टार्ट किया, जो करियर था, वो हम सबको पता है कि बहुत लंबा खेले थे. और केवल ये इंसिडेंट ही नहीं था, यदि आप सचिन के करियर में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए. जब वर्ल्ड कप था आई थिंक 1999 में, तो वर्ल्ड कप में क्रूशियल मैच के समय उनके फादर के डिमाइस हो गया एंड देन वो वापस आए, इंडिया आए, फ्यूनरल किया, अगेन रिटर्न तुरंत बैक हुए, कंटिन्यू जो है वो वहां पे खेले, जहां पे हर कोई कह रहा था कि यू कैन टेक ए ब्रेक. सो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए, ऐसे कई चैलेंजेस आए जहां पे सचिन को मौका मिल रहा था कि लाइक हर कोई कह रहा था कि लाइक यू कैन थोड़ा आप यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो, बट ही सेड नहीं, आई विल प्ले. सो मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाह रहा था, जो यहाँ पे था कि ये एक एटीट्यूड कहाँ से आता है, लाइक ये जो आता है कि मैं खेलेगा, ये एटीट्यूड कहाँ से आता है. सो ये है उस पर्सन का जो एक मिशन होता है, एक विजन होता है, उससे आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा विजन क्या है वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए. आपके पास में ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे सचिन ने था, उस समय भी बोला कि नहीं मैं खेलूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, और आप बिलीव मी ये आपका एटीट्यूड जो है आपको बहुत आगे लेके जाता है. वैसे ही सिमिलरली एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है वो कोर वैल्यूज है. यहाँ पे कोर वैल्यूज क्या है, कोर आपकी बिलीफ क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन हम यहाँ पे एक और एग्जांपल समझते हैं. सचिन के कुछ समय के बाद ही उनके फ्रेंड, उनके जो साथ के जो ट्रेनी रहे हैं विनोद कांबली, उन्होंने भी इंटरनेशनल डेब्यू किया था. विनोद कांबली वाज अगेन वेरी सक्सेसफुल. उनके डेब्यू में उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए. आई थिंक उन्होंने काफी समय तक सबसे फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले जो हैं वो क्रिकेटर रहे हैं. आते ही तो उन्होंने कुछ डबल सेंचुरीज बनाई थी, कुछ कपल ऑफ सेंचुरीज बनाई थी, एंड ही वाज इन वेरी मच लाइमलाइट, काफी ज्यादा लाइमलाइट में वहां पे थे. सो उनको ये भी बोला जा रहा था उस समय कि ही वाज द लाइक इंडियन ब्रायन लारा. एंड लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि कुछ उनकी बैटिंग में जो शॉर्टकमिंग्स थी वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया, अपोनेंट ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उनको जल्दी आउट करने लगे. एंड सचिन में भी ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हुई थी, लोगों ने उनके शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई किया. और आप देखेंगे कि सचिन ने जो सेंचुरीज बनाई वो काफी बाद में बनाई, जबकि विनोद कांबली ने आते से काफी कुछ बनाया था. बट यहीं से डिफरेंस आया, सचिन ने जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रखा, अपने आप को इंप्रूवमेंट किया, विनोद कांबली उतना नहीं कर पाए. तो उनका करियर भी था काफी, उन्होंने काफी नाम कमाया, लेकिन यू कैन से आप देख सकते हैं कि लाइक सचिन ने बहुत लंबा जो है काफी आगे तक आप गए. तो यहाँ पे ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारी कोर वैल्यूज क्या है. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. We will also see a couple of few small videos. Second video is also very interesting. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single on the planet knows what. Please mute from your side, otherwise your sound reflects to that.
Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer? Yeah. So, ये थे Simon Sinek, very famous author and consultant to large corporations. And this theory is called golden circle theory. So आप इसको और Google कर सकते हैं, इसको आप और पढ़ सकते हैं. There is also a book, Start with Why, very popular book. So in a nutshell, like for example, आप अपने inner why से आप शुरू कर सकते हैं कि like why हमें कोई काम करना है तो हमें ये क्यों करना है. Like again, I will go back to सचिन के एग्जांपल्स के मैं पीछे जाता हूँ कि सचिन का जो था वो वाई ये नहीं रहा होगा कि उनको सबसे रिच क्रिकेटर बनना है. आई थिंक दैट वाज नॉट हिज वाई. उनका वाई रहा होगा कि उनको सबसे अच्छा एक बेटर जो है एक प्लेयर बनना है. सो व्हाट कैन बी योर वाई. और ये जो गोल्डन सर्कल है ये सभी फील्ड में एप्लीकेबल होता है. आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में साइमन सिनेक ने बोला था कि लाइक एवरी ग्रेट लीडर और एवरी ग्रेट कंपनी दे स्टार्ट विथ वाई. सो व्हाट इज योर वाई. यू विल or you can search more on this. थोड़ा आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं and then you will understand this concept in detail. But it's a very powerful concept and it will guide you throughout your life also. So that's why I included this point also. And once you are clear, once you know your mission, you know your vision, you have core values, you know your why in life, so you can think about your goals. And I will also make it very clear. So like there is a difference between goal and dream. सो ड्रीम जो होता है वो रिटर्न नहीं होता है. ड्रीम की कोई डेट नहीं होती है, राइट. ड्रीम इज जस्ट ए ड्रीम. बट जब हम गोल की बात करते हैं सो गोल इज अ रिटर्न. गोल के अपने स्टेप्स होते हैं, गोल के अपने प्लान होते हैं, गोल की अपनी एक डेट होती है, उस पर एक एक्शन होता है. सो आप यहाँ पे उसको इस तरह से आप गोल आप वो कर सकते हैं, बना सकते हैं. और व्हेन यू हैव ए पावरफुल गोल और व्हेन यू हैव ए क्लियर डिफाइंड गोल, आपकी लाइफ बदल जाती है. वो कैसे होता है, अगेन आई विल शो यू 2-3 वेरी स्मॉल वीडियोस एंड वी विल सी कि कैसे गोल जो होता है वो हमारी लाइफ बदल देता है. उसकी पहली दौड़ थी दूध के नाम. दूध मिलेगा, दूध 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 दूध. और फिर उसी दूध ने इतिहास में उसका नाम रचाया. मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बनाया. एनर्जाइज द मिल्खा इन यू विद मिल्क, द वर्ल्ड्स ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक. पियो अमूल मिल्क और दौड़ पड़ो अपनी नजदीकी थिएटर की ओर. सो आपने जब देखा होगा भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, तो जब मिल्खा सिंह आर्मी के लिए रिक्रूट होते हैं तो आर्मी में एक सिपाही रहते हैं और कोई खास मिशन नहीं रहता है. तो वहां पे एक प्रोग्राम होता है या आइडेंटिफाई करते हैं एथलीट्स को. तो उसमें उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि वहां पे जो विनर्स होंगे उनको दूध मिलेगा और साथ में उनका जो फटीग है वो माफ होगा. और आप इस पूरे सीन को देखेंगे तो उसमें रहता है कि वो सबसे फास्ट नहीं रहते. मिल्खा सिंह सबसे फास्ट नहीं करते हैं. मिल्खा सिंह रास्ते में वो रुक जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे. तो उनके जो कलीग है वो उनको रिमाइंड कराते हैं कि मिल्खा दूध मेरा दूध.
तो मिल्खा का पहला गोल था कि ये रेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे उनको दूध मिलेगा, इसका डेली मिलेगा उसमें। सो आप इसमें देखेंगे मिल्खा के पास में जो सेकंड उनको एक गोल रहता है कि उनको इंडिया का ब्लेजर चाहिए रहता है। और आप यदि वो सीन को देखेंगे तो और ये अगेन हमें पता है रियल लाइफ का इंसिडेंट है, तो मिल्खा की काफी बेइज्जती होती है कि ये ब्लेजर जो है ये अर्न करना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता है। थोड़ा सा लोगों ने उनको मारा भी होता है कि वो किसी का ब्लेजर पहन लेते हैं। तो मिल्खा का फिर अगला जो मिशन हो जाता है कि वो पूरी मेहनत करनी है और उसके बाद में फिर वो ब्लेजर मुझे चाहिए, तो मिल्खा को वो मिशन मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड एक सीन रहता है जो उसमें रहता है कि मिल्खा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं और वहां पे उनका वो टूर जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, और वहां पे फिर वापस आते हैं, प्लेन में आते हैं और कोच से पूछते हैं कि 400 मीटर जो रेस है उसका रिकॉर्ड क्या है। तो कोच उनको बताते हैं कि लाइक 45.9 सेकंड और समथिंग ऐसा कुछ वो बताते हैं। और उसके बाद उसको एक वो पेपर नैपकिन में एयर इंडिया की जो एयरलाइंस के जो पेपर नैपकिन है उस पर लिख के वो अपने भगवान के सामने, वाहिगुरु जी के फोटो के सामने रख देते हैं और डेली उसको देखते हैं। उनका गोल रहता है, वो रिटर्न गोल तरह रहता है। और उसके बाद में फिर मिल्खा ने उसके ऊपर में काफी मेहनत की, फिर मिल्खा तो मिल्खा सिंह बन गया और उनकी हिस्ट्री हम सबको पता है। सो सिमिलरली थ्रू दिस आई वांटेड टू आपको ये मैं बताना चाह रहा था, आई वांटेड टू कन्वे विद ऑल ऑफ यू कि लाइक गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप यदि उन गोल्स को लिखते हैं, आप उनको ऊपर यदि आप थोड़ा उनके ऊपर में एक्शन प्लान्स बनाते हैं, आप उनको थोड़ा रिव्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, सो यू विल सी आपकी लाइफ जो है, आपकी पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी इसमें। एंड अगेन आप थोड़े ओलंपियंस जो है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप कुछ और स्टडी करेंगे, तो जितने भी जो ओलंपिक्स में जो ओलंपियंस होते हैं उन सबके पास में एक रिकॉर्ड गोल रहता है कि मुझे, जैसे अभी हमारे नीरज चोपड़ा उन्होंने बोला है कि मुझे 90 मीटर प्लस जो है अब वो मुझे जैवलिन थ्रो करना है, तो उनके दिमाग में पहले से क्लियर है, गोल क्लियर है। गोल भी विद कैसा है कि एकदम प्रिसाइज है, 90 प्लस ऐसा क्लियर है। तो उस तरह से गोल जिसकी क्लियरिटी होती है वो काफी आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट। After goals come with your habits also. Like we all are product of our own habit. हमारी जैसी जो हैबिट होती है उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। गोल के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैबिट होता है कि आप कैसे अच्छी हैबिट्स आप डेवलप करते हैं। हैबिट्स बहुत सारे एरियाज में होती हैं। हैबिट आपको ड्राइव करते हैं, ओके, आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चलता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट आपको शेयर करता हूँ। लेट्स से कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जिस ऑफिस में या जिस घर में बहुत साल तक रहे, जिस रास्ते पे 10-12 साल तक गुजर रहे हैं, आप यदि एक दिन आप उसको चेंज करते और अगले दिन आप यदि ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बिना सोचे समझे हमारा जो है, जो अपना ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारी स्टीयरिंग अपने आप उधर मुड़ जाती है, हम उधर चले जाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा न्यूरो साइंस का स्टडी करेंगे तो न्यूरो साइंस में बताया भी जाता है कि हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं। मैं साइंटिफिक जार्गन्स में नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि हमारे दिमाग में वायरिंग्स बनते जाती है और ये दिमाग एनर्जी, हमारी बॉडी का 25% एनर्जी जो है हमारा वो दिमाग कंज्यूम करता है। तो इस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए, ये हमारा जो एक बॉडी है वो इस तरह से काम करता है, माइंड इस तरह से काम करता है कि अक्सर जो चीजें उनको वो हैबिट्स बना लेता है, उनको वो दिमाग में उनकी वायरिंग वो स्टोर हो जाती है एंड देन फिर आप उस तरीके से आप वहां पर बिहेव करते हैं। तो आप जैसे आपकी जितनी अच्छी हैबिट्स होंगी, हैबिट आपकी हो सकती है कि आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। जितना आप हेल्दी रहेंगे उतना अच्छा खेल पाएंगे। खिलाड़ी है, जितना एथलीट है, जितना अच्छा फिट रहेगा उतना उसका करियर लंबा रहेगा, उतना अच्छा आप कर पाएंगे, उतना अच्छा हेल्दी डाइट है। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइक आप कितना आप स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं, कितना आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कितना आप उसमें आप पूरे थॉट के साथ में आप कर पा रहे हैं। और प्लस फ्यू अदर आल्सो गुड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट विल गिव यू ए गुड करियर। सिमिलरली शार्पन द सॉ, शार्पन द सॉ के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज और स्किल और योर एक्सपर्टीज, इट्स बियॉन्ड दैट। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। इसमें बहुत एक कॉमन एक स्टोरी, एक कॉमन कहानी है वुड कटर की। आपने सुना ही होगा कि एक वुड कटर है जो जाता है, वो पहले दिन जाता है जंगल में एंड ही वाज एम्प्लॉयड बाय वन ऑफ द वेल्दी मर्चेंट एंड मर्चेंट आस्क्ड हिम टू गो टू द जंगल एंड कट एज मेनी एज वुड एज पॉसिबल। सो वुड कटर वेंट टू जंगल एंड पहला दिन उसने 17-18 जो है वो उसने पेड़ काटे। सो ही वाज वेरी हैप्पी, ही मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगले दिन वो फिर गया, अगले दिन 17-18 नहीं हो पाए, 13-14 हो पाए। सो he was okay but he was frustrated, बहुत और उसने मेहनत की बट वो नहीं हो पाया। someone told him कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा अपना जो है वो 100 को शार्पन कर लो, बट he was very busy। वो बोला कि नहीं, मुझे शार्पन करने का टाइम नहीं है। एंड नेक्स्ट डे एंड सो ऑन, फिर उसके बाद वो 10 ही काट पाया एंड देन वो मेहनत कर रहा था लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो वैसे कम होते गया। सो ये नॉट ओनली इन एरिया ऑफ योर स्किल सेट, इन योर ऑल एरिया। कई बार हम क्या होते हैं, हम बहुत काम करते करते हम थक जाते हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि
थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। तो लाइक शार्पन द सॉ मीन्स थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी जरूरी है, थोड़ा रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। तो आप पर्सनल साइड पे भी अपना शार्पन द सॉ कर सकते हैं एंड प्रोफेशनल साइड पे भी आप कर सकते हैं। यू विल सी कि हर 10 साल में, एक डेकेड में दुनिया बदल जाती है। जैसे हमने देखा ERP में, अभी देखा 60s में कुछ था, 70s में कुछ था, 80s में कुछ था, 2000 में कुछ था, अभी कुछ और आ गया अगेन एंड सो ऑन। आप देखेंगे मार्केटिंग में था कि पहले डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग थी, अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गई, कुछ समय के बाद में कुछ और आ जाएगा। सो लाइक आपको शार्पन द सॉ करते रहना पड़ेगा। आप यदि शार्पन द सॉ नहीं करेंगे तो एक समय के बाद में वुड कटर जैसा हो जाएगा कि हो सकता है कि आप पहले 17 वुड काट रहे थे, 18 वुड काट रहे थे, एक समय का शायद आप 10 पे रह जाएंगे। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड नाउ एक और बहुत फेमस मूवी का सीन है, आई विल शेयर विथ यू। सर वो हमारा रूममेट लोग का ड्यूटी था, तो क्वार्टर में बैठे, यहाँ बैठे, बात तो एक ही है सर। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन TC का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलें। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। क्रिकेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। बाप रे बाप, इतना सब कुछ सोच रहा था? सॉरी सर, आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ। जूसी हाफ वाले मिलता है तो ड्राइव करता हूँ। अच्छा आउट स्विंगर हो तो छोड़ देता हूँ। अच्छा इन स्विंगर हो तो डिफेंड करता है। और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करता है। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स हैं और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। सर So this scene was from MS Dhoni movie and यहाँ पे मेरा जो पॉइंट था कि लाइक रोल ऑफ मेंटर। सो इस सीन में आप देखेंगे कि धोनी वाज ऑलरेडी लाइक रणजी प्लेयर एट दैट टाइम एंड पहले से ही वो रणजी प्लेयर पहुंच गए, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत थोड़े ही लोग पहुंच पाते हैं। ऑलरेडी ही इज देयर एंड वहां से उनको एक अलग नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं एंड उनके जो वहां पे बॉस थे, आई थिंक मिस्टर गांगुली उनका नाम था, सो वो उनको फिर वहां पे गाइड कर रहे हैं। ये गाइडेंस जो है क्रिकेट की टेक्निक का नहीं है, ये गाइडेंस कुछ लाइफ के चैलेंजेस का है। सो वैसे ही हम लोग कितने भी आगे पहुंच जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, सो हमेशा कहीं ना कहीं एक जगह पे ऐसा आएगा कि जहां पे हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे और वहां पे फिर ये मेंटर्स काम आते हैं। वहां पे मेंटर्स जो है वो आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव देंगे, वहां पे वो मेंटर्स जो है आपको रास्ता दिखाएंगे और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, कितने भी वो आगे बढ़ गए हैं, उनके हमेशा मेंटर्स रहते ही हैं। एंड मेंटर्स वो केवल एक फील्ड में नहीं रहेंगे, मेंटर्स आपको खोजने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल मेंटर्स आपको चाहिए होंगे। हो सकता है कि कोई मेंटर्स होंगे जो आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प करेंगे, कोई मेंटर्स होंगे जो आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एग्जांपल उसमें हेल्प करेंगे, कोई आपके करियर में हेल्प करेंगे, कोई हो सकता है कोई दूसरे एस्पेक्ट में हेल्प करेंगे। सो आपको थोड़े इतने ऐसे आपको लाइफ लॉन्ग आपको मेंटर्स भी खोजने पड़ेंगे, वो मेंटर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे अपने साथ में और मेंटर्स आपको आगे लेके आपको जाएंगे। So very important. I learned this lesson quite late, but this is helping me a lot. So I thought I should share with all of you. And second, I hope आप में से बहुत सारे लोग ये इमेज को पहचान लिए होंगे। So ये चल्लम सर हैं and काफी पॉपुलर अभी सोशल मीडिया पे रहे हैं। So again the mentoring के साथ में एक और पॉइंट आता है नेटवर्किंग का। तो यदि आप लोगों में से कुछ लोगों ने यदि फैमिली में देखा होगा तो उसमें ये रहता है कि जो
जो मेन कैरेक्टर है जो मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम आता था कि लाइक उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वहां पे कहीं पे रोड ब्लॉक आ जाता था। सो रोड ब्लॉक आ जाता था तो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक फॉर एग्जांपल उनको डिटेल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे एक्शन लेना है, उसके ऊपर में कुछ डेटा चाहिए, इनपुट चाहिए, कैसे मिलेगा, रोड ब्लॉक आ गया। तो उनका अपना नेटवर्क था, बहुत सारे नेटवर्क उन्होंने बना के रखे थे, और वो नेटवर्क उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो वैसे ही क्या होगा, एक समय के बाद में आपको भी थोड़ा एक छोटा नेटवर्क आपको चाहिए होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अच्छा ये करना है तो इसमें कैसे करें। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। मेंटर्स का अपना रोल है, मेंटर्स जो है आपके साथ में सेल्फिशली बिना कोई आपके साथ में कोई गेम की उम्मीद रखे आपको आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, आपके साथ में लंबे जुड़ के आपके साथ में काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। वैसे ही आपका अपना एक नेटवर्क भी रहेगा, वो नेटवर्क जो है वो आपको हेल्प करेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको हेल्प चाहिए। तो आपको एक अच्छा गुड क्वालिटी नेटवर्क जो है वो भी आपको एक बनाना चाहिए यदि आपको सक्सेस होना है इसमें लाइफ में। कैसे बना सकते हैं आप नेटवर्क? डिफरेंट आजकल कम्युनिटी फोरम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं इंडस्ट्री साइड पे बात करूं, जैसे हमारी इंडस्ट्री साइड पे तो नेस्कॉम है, टाई है, सीआईआई है, सो मेनी फोरम्स आर देयर। वैसे आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे स्टूडेंट्स के फोरम होते हैं, सिर्फ काफी फोरम्स होते हैं। लाइक यू कैन ज्वाइन डिफरेंट फोरम्स, यू कैन फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, आप एक दूसरे के साथ में लर्न कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वे। बोला जाता है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एक वीडियो और देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर में। सो दिस वाज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। सो आप देखेंगे कि जो आपका स्किल सेट है, जो आपका आईक्यू है, आईक्यू एंड ईक्यू ये दो कॉमन वर्ड है। जो आपका आईक्यू होता है, जो आप स्किल्स हैं, आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं, वो आपको ओनली 20% आपको करियर में कंट्रीब्यूशन देती है। रेस्ट जो 80% होता है वो आप कैसे आप मैनेज करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज को। व्हेन यू गो इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने जरूर वर्क एक्सपीरियंस कुछ होगा। सो आप लोग जब जाएंगे आप देखेंगे कि लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड या जो सिनेरियोज है आउटर वर्ल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू एनकाउंटर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पीपल्स होंगे, लाइक और वो दे कम विद ऑल देयर इमोशंस, दे कम विद ऑल देयर डिमांड्स, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एंड वर्क से ज्यादा ये सब भी एक चैलेंजेस होते हैं। तो लाइक आप कैसे इनको मैनेज करते हैं, कैसे आप सबको एक टीम में आप लेके चलते हैं, कैसे डिफरेंट एडवर्स सिचुएशंस को आप मैनेज करते हैं, और कैसे आप सब लोगों से आप जो है मिलके आप काम को करवा पाते हैं, एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल रोल। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी टीम में हैं, someone is having totally different thoughts, someone is having north and south kind of attitude, and like for example you are dealing with a very difficult client and it's very quite obvious, like we also face sometimes this kind of situations. So like कैसे इसमें काम रहें, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे आगे बढ़े, and it's very important जब आप इस स्किल को लर्न कर लेते हैं, so your life become easy, and it's again one of the crucial skill जो आपको पूरे लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली है, starting from your career to last day of your life. And similarly becoming valuable, again it's very important कि आप जहां भी आप रहेंगे, जिस भी आप ग्रुप में रहें, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइक टू बिकम ए वैल्यूएबल। सो लाइक फॉर एग्जांपल आप जहां जा रहे हैं वहां पे आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट में भी बात करते हैं कि लाइक या किसी भी स्पोर्ट्स में बात करते हैं कि लाइक टीम प्लेयर होना पड़ेगा। टीम प्लेयर होने के साथ में कि लाइक आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा बेनिफिट होना चाहिए कि लाइक टीम को विन करने में हेल्प हो। सो जितना
अच्छा आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना आप दूसरों के लिए आप सोचते हैं, जितना उस ग्रुप के लिए सोचते हैं, उतना वैल्यूएबल बनते हैं, जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना आपको रिटर्न में आपको मिलता है। तो इट्स अ विन विन फॉर ऑल एंड इट्स अ सक्सेस फॉर्मूला। सिमिलरली पीपल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो लिसनिंग की स्किल्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कई बार होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कस्टमर्स को हम नहीं सुन पाते हैं प्रॉपरली, कलीग्स को नहीं सुन पाते हैं, तो ये एक्टिव लिसनिंग डेवलप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज द टाइम, आपके पास अभी समय है, कुछ कुछ कपल ऑफ सेमेस्टर्स हैं, लाइक इफ यू कैन फाइंड टाइम्स एंड यू कैन डेवलप दीज स्किल्स, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगेन यू विल फाइंड सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, वहां पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। क्लियर कम्युनिकेशन, अगेन वेरी बेसिक स्किल्स बट वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस। एंड अगेन टीम बिल्डिंग, आई लाइक रिपीटिंग दिस पॉइंट। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, क्या आप अकाउंटेबिलिटी के साथ में कर सकते हैं, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए नीचे एक लाइन है कि लाइक पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, आपने क्या बोला है लोग भूल जाएंगे, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है वो भूल जाएंगे, लेकिन हाउ यू मेड देम फील, आपने आपके साथ में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक्सपीरियंस, आप कैसा एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हैं इन विद इन योर कलीग्स, आपके जो लाइक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके जो सेटअप्स है, उसमें आप कैसा आप ये करते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफरेंशिएटर इन योर करियर। एंड couple of more few small things. Synergy is also very important. Like आप देखेंगे कि जितने भी बड़े पहले सिनर्जी को समझते हैं, सिनर्जी क्या है। लाइक सिनर्जी मीन्स when different elements works together, जब different elements जब काम करते हैं और उनका जो रिजल्ट है, if it is higher than all of such elements, plus if 1 + 1 is equal to 3, so then it's working on synergies. So आप देखेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में कैसा होता है कि लाइक देयर आर डिफरेंट म्यूजिशियंस और बीच में एक कंडक्टर है, कोई वायलिन प्ले कर रहा है, कोई हो सकता है गिटार प्ले कर रहा होगा, पीछे कोई हो सकता है कि ड्रम कोई प्ले कर रहा होगा, कोई वोकल इस पे होगा। सो देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। तो आपको क्या करना होता है, ऑर्केस्ट्रा जो है उसको कंडक्टर है, कंडक्टर को क्या करना होता है, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर नो किसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आप भी जब जाएंगे कहीं टीम में जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम होगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किसकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ को डबल करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे प्ले करना पड़ेगा, कहाँ पे वीकनेस है, जहां वीकनेस है उस वीकनेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको सिनर्जीज बना के हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऑल दीज 3-4 पॉइंट्स लाइक पीपल स्किल, सिनर्जी, ये सारे लिंक पॉइंट हैं, बट थोड़े फाइनल इसमें डिफरेंसेस हैं। वंस यू मास्टर ऑल दीज पॉइंट्स, so you become a like leader sort of thing or high performer sort of things. And one more things like importance of struggles, importance of obstacles, and I will guarantee you, I will say like life में आप जाएंगे, most of the people will face some kind of obstacle. यदि आप obstacle face नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि like you are into very much comfort zone, आप बहुत ज्यादा comfort zone में हैं और comfort zone में growth नहीं होती है। Your growth or your success always lie outside of your comfort zone. Comfort zone के बाहर ही होता है। So I took a few examples from the sport fraternity. युवराज सिंह को आपने देखा ही होगा, कुछ साल पहले ये रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड इट हैज बीन वेरी इलस्ट्रेटिव क्रिकेटर युवराज सिंह रहे हैं। युवराज सिंह 2011 में इनको वर्ल्ड कप के समय कैंसर डिटेक्ट हुआ था। सो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में ये इन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, वापस आए और इंडियन टीम में कम बैक करके वापस खेले। और वैसे ही कई स्ट्रगल्स आते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जबरदस्त उसमें कम बैक किया। उसमें मैरी कॉम बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल्स है। इनकी पूरी लाइफ जो है पूरी ऑब्स्टेकल और स्ट्रगल से इसमें भरी हुई है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि बहुत हैम्बल बैकग्राउंड था, बहुत चीजों की डिफिकल्टीज थी, वहां से इन्होंने इंटरनेशनल अरेना पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद में मदर बनी, 2 इनके किड्स हुए। उसके बाद में उन्होंने वापस उसके बाद भी उन्होंने कम बैक किया और इंटरनेशनल ये मेडल्स जीते। 2016 में उन्होंने ये वर्ल्ड कप में ओलंपिक में भी उन्होंने मेडल जीता। सो अगेन ये सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके वापस आते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स जो है आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, और जितने आएंगे उतना आपको कैरेक्टर्स बिल्ड करेंगे। तो आपको जस्ट उस समय जस्ट हैंग ऑन होना है, वहां पे उससे आगे निकलना है, आपको और मजबूत बनना है। एंड वन लास्ट वीडियो, If you ever seen skiers go through trees, do you know how they do that? It's very easy. It's actually surprisingly easy. If you go through trees on skis and you go, don't hit a tree, don't hit a tree, don't hit a tree, guess what you're watching? You're only looking at trees. All you're doing is seeing trees. You don't understand how anyone can ski with all these trees, right? As opposed to follow the snow, follow the path, follow the path.
The only thing you see is the path. Skiers know this. If you say don't hit a tree, you'll hit a tree. You won't be able to find a path because all you see is millions of trees. If you say only follow the path, you actually don't see any trees. There's actually very sparse trees. There's plenty of path. There's plenty of snow. It's the same thing for you. If you focus on the obstacles, all you will see is obstacles. If you focus on the path through the trees, all you will see is path through the trees. It's your choice how you choose to perceive your own career. It's literally perspective. So I will summarize जो साइमन सिनेक में जो कुछ पॉइंट्स बोले हैं इसमें. So इन्होंने एक स्की जो हम करते हैं आइस के ऊपर में, उसके बारे में बोला है. जो स्की प्लेयर होता है वो उनके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ होते हैं, काफी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि लाइक मतलब ट्रीज को देखते हैं और ऐसा नहीं बोलते हैं कि लाइक आई डोंट हैव टू हिट द ट्रीज. नहीं, उतने जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके बीच में उनको सिर्फ क्या दिखता है, उनको दिखता है कि रास्ता दिखता है, पाथ कहाँ पे है. और जो पाथ दिखते हैं, जो स्की प्लेयर्स होते हैं, उनको सिर्फ पाथ दिखता है, उनको ट्रीज नहीं दिखते, उनको ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते हैं. तो वैसे ही आपके करियर में भी आपको ट्रीज आपको नहीं देखने हैं, आपको देखना कि पाथ कहाँ पे है, रास्ते कहाँ पे है. So, वो आपको देखना है. एंड आई विल रिकमेंड यू फ्यू कपल ऑफ बुक्स. सो लाइक साइमन सिनेक के मैंने आपको 2 वीडियो शेयर किए. सो ही इज वेरी फेबुलस ऑथर. यू कैन रीड स्टार्ट विद व्हाई. आप बिल्कुल बहुत लाइक गेम चेंजिंग बुक है. लाइक इट विल चेंज योर माइंड. सिमिलरली 7 हैबिट्स काफी पुरानी बुक है लेकिन स्टिल रिलेवेंट. यू कैन रीड दिस वन. द वन थिंग, दुनिया में बहुत कुछ है, काफी कुछ है. हाउ टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स. द अल्केमिस्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ड्रीम एंड रिजल्ट्स. विंग्स ऑफ फायर, अब डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर उनके प्रेसिडेंट बनने के पहले ही लिखी हुई थी. अगेन वेरी इंस्पायरिंग बुक. ये कैसे एक रामेश्वरम से कैसे एक लड़का जो है वहां से निकल के कैसे इंडिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनते हैं. कैप्टन गोपीनाथ, अगेन मस्ट बुक फॉर एवरीवन. सो लाइक एयर डक्कन के फाउंडर्स थे, इनके ऊपर था. सुब्रत बागची के ऊपर में द प्रोफेशनल्स, हाउ टू कंडक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ. EQ के बारे में आप डेनियल गोलमैन की बुक से आप पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ हैबिट. एंड अगेन इट्स अ वेरी जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल. अगेन वेरी स्मॉल एंड फेबल है बुक है. इसमें हैबिट्स के ऊपर में अगेन यू कैन ऑल्सो ट्राई मिरेकल मॉर्निंग, वेरी इंटरेस्टिंग बुक. एंड डेल कार्नेगी एंड ब्रायन ट्रेसी की ऑल बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनलाइटनिंग. सिमिलरली सो आई विल सम अप कि लाइक आपके पास अभी जो समय है, कपल ऑफ सेमेस्टर्स है, ये कैसा आप इसको बेस्ट यूज करते हैं, ये आपके हाथ में है. हाउ यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम मनी एंड सोशल स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लाइक सक्सेस इज ऑल्सो लाइक मीन्स कि आप कितने लेस स्ट्रेस रहते हैं, लेस वरीड रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, कितने हैप्पी रहते हैं. और ये प्रिपरेशन से भी आती है. यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल दिस. एंड सिमिलरली लाइक आई विल समराइज, यू कैन आइडेंटिफाई योर गोल्स. अभी आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप गोल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं सक्सेस होने के लिए, उसको अचीव करने के लिए. आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, मेंटर्स के साथ में वर्क कर सकते हैं. चैलेंजेस है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस कीजिएगा, सबको प्रॉब्लम्स आएगी. स्टे ऑन ट्रैक, जस्ट हैंग ऑन. कई बार होता है तूफान आता है, निकल जाता है, जस्ट यू हैव टू हैंग ऑन एंड फाइनली शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश a happy learning to all of you, and I wish your time to succeed is now. Okay, thank you very much, sir. Okay, so we have one question from Diksha. Diksha is a student of PGDM Finance, I guess. Yeah. So Diksha is asking that how ERP helps in financial reporting of the companies. Yeah. So दीक्षा, अभी जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वेरियस एस्पेक्ट होते हैं. कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी की रिपोर्ट्स. सो आप देखेंगे कि लाइक ईआरपी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डिफरेंट मॉडल्स. सो आप कोई भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट निकालनी है, जीएसटी की निकालनी है, तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ सेल्स, परचेज, ये सब हुआ. दैट ऑल कम्स फ्रॉम द ईआरपी. सिमिलरली लाइक आपके कैश फ्लो, फंड फ्लो है, तो लाइक क्या पेबल है, क्या रिसीवेबल्स है, क्या बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह है. तो ये ईआरपी में ये सारी चीजें, सारे डेटा होते हैं. इन डेटा के बेस पे ये रिपोर्ट जनरेट की जाती है. सो ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर बीइंग जनरेटेड बाय ऑल द ईआरपीस. Okay. Sir, there is one more question. That is, we have PGDM ERP, that is as our branch. So your suggestion, any suggestion for PGDM students so that they will be very helpful to the industry. So at what area they should focus
on what area they should focus during their PGDM while doing PGDM ERP, so that they will become the more fruitful for the companies. Right. So first thing I will say कि it's a very nice thing कि PGDM ERP में आया है. As an industry हम लोग हमेशा ये फील करते थे कि ये जो एक गैप था, जो like for example जो स्टूडेंट्स MBA करके भी आते थे, तो ERP is a very specialized area. So especially जैसे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनमें हमें ERP के हिसाब से बताना पड़ता था. साथ में जो फंक्शनल कंसल्टेंट बनते हैं, जो डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, लाइक उनका जो नॉलेज है, लाइक MM, फाइनेंस, सेल्स, उनके बारे में पूरा बताना, लाइक प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, वो मतलब इंडस्ट्री को हमको काफी समय लगता था. लाइक कोई भी एक स्टूडेंट आ रहा है उसको 2 to 3 months का इंटेंसिव ट्रेनिंग 3 to 4 months हमें देना पड़ता था. तो यू आर लाइक यदि आपने लिया है PGDM ERP आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक पाथ पे चल रहे हैं. सो इसमें ERP में 2 साइड होते हैं, वन इज फंक्शनल एंड अनदर वन इज टेक्निकल. सो आपको फंक्शनल साइड पे फोकस करना है. आई विल से 2-3 थिंग्स. यू कैन पिक कपल ऑफ मॉड्यूल्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस आपको अच्छा लग रहा है या मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, तो वन थिंग इज योर फंक्शनल नॉलेज. ट्राई टू गेन फंक्शनल नॉलेज इन 1 or 2 मॉड्यूल्स. सारे में करने की शुरुआत में जरूरत नहीं है, आप 1-2 में एक्सपर्ट हो सकते हैं. तो वन थिंग इज फंक्शनल नॉलेज. सेकंड इज लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग काइंड ऑफ एरियाज, लाइक बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है उससे रिलेटेड कुछ एरियाज. So business analysis related areas, functional knowledge, plus couple of project management things, kind of things. So ये 3 areas हैं जिनके ऊपर आप focus करेंगे. So आप you can become a good business analyst or functional consultant. So ये एक area है. So that is one advice. But otherwise उसमें और भी बहुत सारे options हैं, वो भी आप explore कर सकते हैं. But this is going to be very demanding area of expertise. So it is very much in demand. Okay, thank you very much, sir. Sir, there is one more question, that is we have PGDM business analytics as well. Right. So is there any role of that business analytics in the companies who are dealing with ERP? Yeah, definitely. I said ERP is a culmination of integration of so many expertise, right? It's a kind of orchestra. Like you also need a drummist, you also need a guitarist, you also need वोकलिस्ट. तो सबकी जरूरत है. और इसमें यू कैन नॉट से कि ये कम ज्यादा है, गिटार वाले ने अच्छा गिटार नहीं प्ले किया तो अगेन म्यूजिक विल बी इंटरप्टेड. सो सबकी जरूरत है. तो बिजनेस एनालिस्ट का जो आपका जो BI का रोल है, राइट, उसका रोल जो है बेटर रिपोर्टिंग में, बेटर इंसाइट में. इसके पहले जो दीक्षा का क्वेश्चन था कि कैसे रिपोर्ट्स आएगी, वो उस डिपार्टमेंट का काम था. तो इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है. Okay, that's so great. And because today's session, the starting session was a bit technical, and the students have to understand that ERP, they are very new to, with that particular segment. So, sir, with this saying, I feel now the questions are not coming. So I must say, sir, thank you very much for your precious time and the expertise you have shared, the knowledge you have shared with the student. Diksha is saying thank you very much, sir, for enlightening us with your knowledge and wisdom. Got to learn a lot from you today. So Diksha is saying thank you. And on behalf of IIBM family, I must say thank you very much, sir, for your time and energy that you shared with us. And we are expecting more such type of sessions from you. So with this notes, sir, thank you very much. I also would like to thank you to you, Shyam sir, and to the college management for providing me the opportunity to interact with all of you. So thank you.